Hello students, how are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Very fresh morning to all of you. I am Fatima Kulsala from Atmiya Green School, Jadeshwar, and welcome back to our English grammar class. So, we have completed our chapter number 16, that is subject-verb agreement, and I hope that you have completed all the exercise which I have sent you and which I also explained you in the video. And I told you that you just have to write down the exercises in your grammar book itself. So today we would be starting with the new chapter, that is chapter number 17 on page 70 in your grammar textbook. Can, may, will, would and could. So these are some words which are considered as verbs and they are also known as modals. Okay, and these modals are used as an auxiliary or helping verbs along with our base verbs. Okay, so we'll see how to use it and when to use these modals. So students, I request you to open your grammar textbook, Adventures with Grammar and Composition, page number 70. So students, as I told you, that words such as can, may, would, will, could are called modals. They are used before the main verbs. As I told you that these are the verbs which are used as helping verbs. Okay, just like we use be form, that is am, are and was, were, has, have, do, does and did. right, ये सारा हमने पढ़ा है कि हम वो सारे वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज करते हैं. वैसे ही ये भी वर्ड्स है जो हम मेन वर्ब्स के साथ यूज करते हैं एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब्स, बट दीज verbs are called modals. Okay, can, may, will, would and could. इसके अलावा भी काफ़ी सारे और verbs है जैसे कि might, should, shall, ought not to या फिर ought to, have to, must. Okay, there are many different models, but we are going to study 5 of them in this chapter, and each model is used to express different things. Over here they are going to help us to express meanings such as ability, permission, request. Okay, so we are going to learn which model we are going to use to describe the ability or permission or request. Okay, so ये सारे models हैं जो helping verb की तरह काम आएंगे. किसके साथ? बेस वर्ब के साथ. हमारा जो मेन वर्ब होगा सेंटेंस में उसके साथ हम लोग मॉडल्स यूज करेंगे और हर एक मॉडल का यूसेज अलग अलग होता है. ठीक है, सो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है बट यू विल गेट इट क्लियर एज एंड व्हेन वी विल स्टडी. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, दैट इज कैन. सो विल स्टडी अबाउट कैन. लुक ऑन पेज नंबर 71. Okay, so let's see can. Can is used to describe ability. हम can कब यूज करते हैं? जब हमें एबिलिटी के बारे में बात करनी है. एबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ करने की नॉलेज या फिर कोई चीज़ करने की कैपेबिलिटी. ठीक है, उसके लिए हम कैन यूज करते हैं. वी यूज कैन. We use can to say that we know how to do something. So we are going to use can when we know how to do something. जब हमें कोई चीज़ अगर आती है तो हम ऐसा कहते हैं कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ. I can do this thing because I know how to do it. Or we can use cannot, that is negative form, right? कैन नॉट यूज करते हैं जब हमें ऐसा बताना हो कि ये चीज़ हमें करनी नहीं आती है, तब हम कैन नॉट यूज करते हैं. ओके, बट यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग दैट वेन एवर वी यूज द मॉडल वर्ब, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है सबसे पहले तो मॉडल वर्ब में, और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा बेस फॉर्म में ही रहेगा. जैसे कि लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल ओवर हियर. आई कैन
fly, right? Over here if you see we have used the verb can, ये हमारा मॉडल वर्ब है, और उसके बाजू में जो मेन वर्ब है वो है उड़ना, दैट इज फ्लाई, राइट? सो फ्लाई इज अवर मेन वर्ब, बट दिस मेन वर्ब ऑलवेज हैज टू बी इन द बेस फॉर्म, ओके? फिर वो नेगेटिव सेंटेंस हो या पॉजिटिव सेंटेंस हो, हमें वर्ब को बेस फॉर्म में ही रहने देना है, ठीक है? I cannot do quick maths. Again, here also you can see we have used cannot. That is for negative sentence. और उसके साथ जो verb है do मतलब करना, यहाँ पे ये do क्या है, हमारा main verb है, and that is also in the base form. Okay? We use could and could not to say we knew or did not know how to do something in the past. तो could और could not कब यूज करेंगे? जब हमें कोई चीज आती थी या नहीं आती थी, ठीक है, पास्ट में, तो हम could और could not यूज करेंगे. मतलब आपको याद रखना है कि हम can प्रेजेंट टेंस के बारे में जब बात कर रहे हैं तब यूज कर सकते हैं, और could जब हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तब यूज कर सकते हैं. और दोनों चीजें क्या दिखाएगा? एबिलिटी दिखाएगा. ओके, व्हाट इज इट गोइंग टू शो? कैन एंड कुड. व्हाट आर दे गोइंग टू शो? दे आर गोइंग टू शो एबिलिटी, ठीक है? इट विल शो द एबिलिटी. दैट मीन्स कि हम कोई चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें कैन और कुड यूज़ करना है. और कैन हम यूज़ करते हैं मोस्टली प्रेजेंट सिनेरियो के लिए, और कुड हम यूज़ करते हैं पास्ट सिनेरियो के लिए, ठीक है? When I was a baby, I could crawl, but I couldn't fly. So here you can see when I was a baby, मतलब ये क्या हो गया? पास्ट टेंस, और उसके साथ हमने यूज़ किया है could. I could crawl, but I couldn't fly. Over here, couldn't is the short form of could not. Okay, remember that. Now, when we are making positive sentence, what we are going to do? We are going to first use the subject, ठीक है? उसके बाद हम यूज़ करेंगे can, और उसके बाद आएगा हमारा verb, जो मैंने आपको बताया कि कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, बेस फॉर्म में, ठीक है? अभी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल. यहाँ पे जैसे प्रोनाउंस लिखे हुए हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट. व्हाट आर ऑल दीज? ऑल दीज आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. वैसे ही अगर कोई नाउन्स है तो नाउन्स के साथ भी अगर थर्ड पर्सन है तो नाउन्स यूज किए होंगे, ओके? लेकिन उसके साथ भी हमें क्या यूज करना है? कैन ही यूज करना है, वेदर इट इज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन. उसके साथ हमें कैन ही यूज करना है, कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग कैन के अंदर. और जो हमारा वर्ब होगा वो भी हमें बेस फॉर्म में ही रहने देना है, ठीक है? सो यू कैन सी दिस, आई कैन स्विम. योर आई, उसके बाद हमने लिखा है कैन, एंड देन स्विम इज अगेन अ वर्ब विच इज बेस फॉर्म, ठीक है? और कैन को जैसे है वैसे ही रहने देना है. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं देन एट दैट टाइम वी जस्ट हैव टू ऐड नॉट अलोंग विथ इट. जैसे कि कैन नॉट है यहाँ पे, राइट? कैन नॉट, this is the short form of cannot. So the same thing has to be done. The only addition while we are making a negative statement is the addition of not. हम यहाँ पे और कोई वर्ब हम कोई और एडिशन नहीं करेंगे, सिर्फ नॉट का एडिशन करेंगे, ठीक है? और जो भी सब्जेक्ट हो आपका, वेदर इट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, जो भी है, उसके साथ हमारा जो वर्ब है वो हमेशा बेस फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है? सो जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब भी कैन यूज़ करते हैं या कुड यूज़ करते हैं, हमारा वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होता है, ठीक है? उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें ना ही एस ऐड करना है, ना ही पास्ट टेंस बनाना है, ठीक है? अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तब भी हमें सेंटेंस का जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में ही यूज़ करना है, क्योंकि हमने उसके साथ क्या यूज़ किया है? मॉडल वर्ब, दैट इज कैन और कुड.
जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, द बेबी कैन नॉट च्यू, सो कैन नॉट और उसके साथ जो वर्ब है च्यू, दैट इज बेस फॉर्म. नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस. टू मेक क्वेश्चंस वी यूज कैन plus I, we, you, they, he, she, it plus verb in the base form. Okay, so here if you remember we have learned कि जब हम sentence questions बनाते हैं, मान लो फ्यूचर टेंस में जैसे हमने सीखा था, राइट? तो हम क्या लिखते थे? पहले will लिखते थे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब. वैसे ही जब हम मॉडल्स से क्वेश्चन बनाते हैं, तो जैसे यहाँ पे कैन है तो हम पहले कैन लिखेंगे, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट विच इट कुड बी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, ओके, विच एवर इट इज. बट अलॉन्ग विथ इट हमारा वर्ब वापस क्या हो जाएगा? बेस फॉर्म. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट द वर्ब हैज टू बी इन द बेस फॉर्म. और फिर क्वेश्चन मार्क, जैसे कि कैन यू स्विम. सो आई होप कि आपको कैन और कुड नॉट पता चल गया कि कब यूज करना है, राइट? हम कैन यूज करते हैं, कैन और कुड कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी. ओके, जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं कि हमें कुछ पता है, आता है, या फिर ये चीज हमको नहीं आती है, एट दैट टाइम वी यूज कैन. वी यूज कैन फॉर प्रेजेंट सिनेरियोज एंड वी यूज कुड फॉर पास्ट सिनेरियोज. मतलब जो चीज पास्ट में हो गई है उस चीज के बारे में, मतलब जो पास्ट में हमें आता था या पास्ट में हम कर सकते थे, या फिर वो चीज़ हो जो हम पास्ट में नहीं कर सकते थे, अगर वो दिखाना है तो हमें कुड यूज़ करना है. और जो चीज़ हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ या ये चीज़ मैं नहीं कर सकती, तो उसके लिए हम कैन और कैन नॉट यूज़ करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन, दैट इज परमिशन. परमिशन you can use two models, that is can and may. हम दोनों यूज कर सकते हैं, कैन और मे. वी कैन यूज कैन एंड मे टू आस्क समवन परमिशन टू डू समथिंग. अभी कैन और मे दोनों में एक चीज ही डिफरेंट है कि हम कैन यूज करते हैं अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं तब, ठीक है? फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, पेरेंट्स है, ओके. ये इनफॉर्मल चीज़ों के लिए यूज होता है. इनफॉर्मल मतलब जहाँ पर आप नॉर्मली बात करते हो, उस चीज़ के लिए आप कैन यूज करते हो, ठीक है? सो वी कैन यूज कैन व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स. इट इज़ यूज्ड इन इनफॉर्मल सिचुएशंस, राइट? अगर आपने लेटर्स पढ़ा है आगे तो आपको मालूम होगा कि हम लेटर्स को डिवाइड करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में, राइट? जैसे कि अगर आप टीचर को लिखते हो, जो आपसे काफ़ी बड़े हैं, आप उनको जानते नहीं हो, पहली बार मिल रहे हो, राइट? तो वैसे लोगों के लिए हमें फॉर्मल सिचुएशन आ जाती है वहाँ पे, तो हम उसके लिए मे यूज़ करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्टिव लगता है, रिस्पेक्ट देना लगता है. हम मे कब यूज़ करते हैं? जब हमें सामने वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है तब. और कैन हम अपने फ्रेंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो हमारे फ्रेंड्स हैं, सो वी कैन टॉक इन एन इनफॉर्मल वे. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें वैसे ही वर्ड्स यूज़ करने हैं जो फॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? सो वी यूज़ कैन व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स. सो हियर यू कैन सी कैन आई कम इन, और उसका आंसर भी आपको वैसे ही मिलेगा, येस यू कैन. कैन आई प्लक मैंगोज? नो यू कांट. ओके, सो यहाँ पे भी आपने फॉर्मेशन देखा होगा कि हाउ डज इट वर्क, राइट? पहले कैन है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपका वर्ब, ठीक है? नाउ लेट्स सी मे, हाउ टू यूज मे. Okay, we use may for asking permissions when we need to be formal. Okay, so we are going to use may for asking permissions जब हम किसी से फॉर्मल बात करते हैं, या जैसे कि आप आपके टीचर से बात कर रहे हो, राइट? या फिर कोई जो घर पे एल्डर आया है जिसको आप नहीं जानते हो, सो उनके साथ भी जब आप बात करते हो तो आपको अगर किसी चीज़ के लिए परमिशन मांगनी है तो आप मे यूज़ कर सकते हो. जब आप किसी और के घर जाते हो एज अ गेस्ट, एट दैट टाइम ऑल्सो यू शुड यूज़ मे इंस्टेड ऑफ कैन. आप कैन किसके लिए यूज़ करोगे? जिनसे आप टच में हो, जिनसे आप बात करते हो हमेशा रेगुलरली, राइट? और जो आपके फ्रेंड्स हैं,
उनके साथ आप कैन यूज़ कर सकते हो, लेकिन मे कब यूज़ करोगे? जब वो टीचर स्टूडेंट की बात आती है, या फिर कोई बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन है, या फिर वो कोई ऐसे इंसान है जिसको आप जानते ही नहीं हो, पहली बार मिल रहे हो, तो उन सब के लिए आपको मे यूज़ करना है. सो ओवर हियर यू कैन राइट, मे आई कम इन मैम? Yes, you may. May I go now? No, you may not. Read. So here you can see may is used along with subject. Then come is your verb which is in base form, and ma'am because it's a formal talk. It's a formal question. हम किसी से परमिशन ले रहे हैं और सामने वाला बड़ा है और आपका टीचर भी हो सकता है, राइट? सो व्हेन यू आर टॉकिंग विथ योर टीचर एंड यू आर आस्किंग परमिशन, यू कैन से कैन आई कम इन, you have to say may I come in. Okay, may I go now? Okay, now let's see the next one, that is exercise, and you need to tell me whether the statements are expressing an ability or permission. Let's see the first one. Zahir can bowl really fast. So here आपको क्या दिखता है? Ability बता रहा है या permission? Yes, you can say that this sentence is showing the ability of Zahir, right? ये Zahir की ability दिखाता है कि वो speed में bowl कर सकता है, right? Now second one is, may I speak now? Now what do you think about this? This is permission. Zohra could draw well even as a baby. Now here you can see that the model used over here is could. और could हम कब यूज करते हैं? जब हमें एबिलिटी बतानी हो तब. तो ये हो जाएगा आपका थर्ड वन, हो जाएगा आपका एबिलिटी. सॉरी. Now let's see the fourth one. Can I go outside to play? Well, here you can see that we have used the model can, but we are not showing the ability, right? यहाँ पे हम ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ के लिए परमिशन मांग रहे हैं, right? कि can I go outside to play? So this is your permission. Now next one, Mr. Sehgal cannot drive a car. Now here the word cannot shows the ability that Mr. Sehgal cannot drive the car. वो कार नहीं चला सकते हैं. So that shows the ability. Bats can sleep hanging upside down. Here again you can see the modal verb used is can. और bats क्या करते हैं? वो क्या कर सकते हैं? They can sleep hanging upside down. So this is again an ability. So I hope कि आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई है, और आपको एबिलिटी के लिए जो हम कैन और कुड यूज करते हैं और परमिशन के लिए कैन और मे यूज करते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन विद द एबिलिटी एंड द परमिशन. एबिलिटी मतलब कोई चीज दिखाना कि ये चीज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और परमिशन मांगना जिसके लिए हमने दो वर्ड्स यूज करना सीखा, एक है कैन और दूसरा है मे. वी यूज कैन व्हेन वी आर आस्किंग परमिशन टू आवर फ्रेंड्स. जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, दैट टाइम वी यूज कैन. वो इनफॉर्मल चीज़ों के लिए यूज होता है. और जो मे है वो हम परमिशन के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन हम मे ज़्यादातर फॉर्मल बातों के लिए यूज करते हैं, या फिर हम आप बोल सकते हो कि इट इज़ more formal way to speak. Okay, you can say that it is used, may is used when we are talking to someone and we are trying to give more respect to that person. Okay, so for that we are going to use may. Now let's see how we are going to make request. For making request we are going to use could, can, will or would. हम ये चार वर्ड्स यूज कर सकते हैं, मतलब along with the verbs when we want to make a request. जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं उस टाइम पर हम ये चार वर्ड्स यूज कर सकते हैं, और उसमें से आउट ऑफ दीज फोर यू कैन सी could and would, they are considered to be more polite. ये दोनों वर्ड्स काफ़ी पोलाइट है, मतलब
सामने वाले को ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हम कैन और विल की जगह पर कुड और वुड यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो ऐड प्लीज़ इफ़ यू वांट टू, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो आप, कैन यू ओपन द डोर। ओवर हियर यू कैन सी दैट वी हैव यूज्ड कैन और उसके साथ जो हमारा वर्ब है ओपन वो है बेस फॉर्म में, और ये क्या हो गया, कैन यू ओपन द डोर, इट्स अ रिक्वेस्ट कि कैन यू प्लीज डू दैट थिंग फॉर मी, राइट। सेकेंड इज विल यू कैरी दिस फॉर मी, this is also something you are asking somebody to do, but when you use can, will, could or would, it is considered to be polite way of asking somebody. So here also you can see along with will our verb carry is in base form, ठीक है। Now the third one, would you help me with my homework please? Now here you can see that instead of can and will we have used would. So ये would भी सेम ही तरह से यूज होता है, जैसे कैन और विल है वैसे ही कुड और वुड यूज होता है, लेकिन कुड और वुड ज्यादा पोलाइट वे है बोलने का। वैसे ही कुड का क्वेश्चन है, कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सो दीज टू ऑफ देम आर कंसिडर्ड, these two are considered to be more polite than these two, okay. These are considered to be polite way of speaking. So now let's see exercise B. You need to look at the pictures and choose the suitable option to complete the request. The first one is, could you or may you open the window? As we learned that when we are making a request, we can use can, could, will and would. So over here, the suitable option would be could you, right? Could you open the window? That would be a courteous way of saying, because the person with whom we are sitting, we don't know him, right? हम उनको जानते नहीं है, तो बेटर है कि हम उनसे पोलाइटली बात करें, और अगर हम पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कुड यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेकेंड वन, विल आई और मे आई हेल्प यू। सो हियर द पर्सन is asking you that can he help you. So यहाँ पे जो suitable option होगा वो होगा may I help you. It's considered to be a formal way to talk with somebody who is there to ask help, right? अभी जैसे मैं या फिर अगर आप मेरे पास आके कुछ प्रॉब्लम बताते हो तो मैं आपको क्या बोलूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर दूँ, so may I help you. So that is the way we speak, okay? It's not a request. Well, you can say it's a request, but here we can't use will. Let's see the third one. Can I or would I borrow your pencil? So here, so students, in third one, you can see that these two of them can be friends, right? So when we are talking to friend, we can use can instead of would, राइट। वुड नॉर्मली हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर भी एक रिक्वेस्ट ही है, या फिर यू कैन से इट्स परमिशन, राइट। सो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो अगर वो फ्रेंड है हमारा तो हम उसके साथ कैन यूज कर सकते हैं, राइट। सो द ऑप्शन विच सूट्स ओवर हियर इज कैन आई बोरो योर पेंसिल। सो द फर्स्ट वन वुड बी कुड यू ओपन द विंडो, second one would be may I help you, and the third one would be can I borrow your pencil. Now let's see exercise C, which is on page number 73. What will you say in these situations? Match the situation with the given request. So students, in this box which you can see over here, the box given over here has some requests, okay. On the basis of the images given over here, we have to write the request. So let's see the first one. I think this girl is trying to tell that boy something. So it could be, can you turn down the volume? So this is your first request,
right? Because the girl is requesting his friend or his brother to turn down the volume as she's trying to read. You can see the image over here. See? Right, now let's see the second one. Now you can see in this second image, it feels like the boy is thirsty, or he might have ate something which is very spicy. So he can ask, could you pass me some water? Right? So this would be your second answer. Could you pass me some water? Now let's see the third situation over here. Well, here you can see that the teacher is teaching the students and one of them has raised their hands. So, what is she trying to say? What do you think? It might be, could you speak loudly, ma'am? This would be your answer to third situation. Could you speak loudly, ma'am? Now here you can see that we have used could. ठीक है, क्योंकि could क्या है? पोलाइट वे है और हम किससे बात कर रहे हैं? टीचर से बात कर रहे हैं, राइट? सो इट वुड बी रियली गुड इफ यू कैन यूज द वर्ड विच आर मोर पोलाइट व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग समबडी टू डू समथिंग. ओके, नाउ लेट्स सी द फोर्थ सिचुएशन. Okay, so here you can see the boy is holding something in his hand and she is requesting something. So it could be this one. Can you give me your email address? So this is the fourth situation. Now let's see the next one. Over here, we can see that this boy is feeling cold, right? So what he could be asking? He is asking, would you close the window? So this is the answer for your sixth situation. And again they have used would over here because they are requesting someone who is elder to him, right? And that's why he has used would over here. And the last situation is, this boy is offering something to the man. So that would be lemonade. So the answer would be, would you like to taste some lemonade? So this is your answer number 6. So students, I hope that you are clear with the usage of can, could, will and would. Let me just revise it for you. We use can when we are talking about the ability, right? Can और could कब यूज करते हैं? जब हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं कि हमें ये चीज आती है या हम ये चीज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, राइट? सो फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो वी आर यूजिंग कैन, एंड फॉर द पास्ट थिंग, मतलब पास्ट में कोई चीज आना या नहीं आना, उसके लिए हम यूज करेंगे कुड या फिर couldn't. And make sure that whenever you're using the models, you have to keep your verb in the base form. ठीक है, बेस फॉर्म में ही रहने देना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं. और सब्जेक्ट के अंदर कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, उसके साथ भी हम कैन यूज करेंगे और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा बेस फॉर्म में ही रहेगा. कैन और मे हम लोग परमिशन के लिए यूज करते हैं. वी यूज कैन व्हेन वी आर टॉकिंग टू अवर फ्रेंड्स, दैट मीन्स व्हेन वी आर आस्किंग फॉर परमिशन. But if that is our friend, then we can use can. But when we are talking to someone who is elder to us, or we need to pay more respect to that person, or someone whom we don't know at all, तो उसके लिए हमें may use करना है, ठीक है? Because it is a more respectful way of asking permission. तो तब हम may use करेंगे. और रिक्वेस्ट के लिए हमने पढ़ा कि हम चारों यूज कर सकते हैं, could, can, will and would. But if you use could and would, it would be considered more polite. Okay, so I hope that you are clear with all the models and you have to complete all the 3 exercises in your textbook itself. I would be sending you the answers
of all the 3 exercises. Okay? Till then, take care and see you soon. And please do watch the full video. And if you don't understand, you can ask me in the live class. Bye bye.